Our today's session is about Euclidean domains. So, about Euclidean domain. इससे पहले कि हम यूक्लिडियन डोमेन को डिस्कस करें, हम कुछ कंसेप्ट रिकॉल करते हैं. We know that an integral domain is a commutative ring. Let's recall that definition. Integral domain. A commutative ring or with identity means with multiplicative identity. With identity is called integral domain. If R does not contain zero divisors. Zero divisors. So this is definition of integral domain. I have just recalled it. We know this definition very well already. Let's define the concept of divisibility. So divisibility. ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप प्राइमरी स्कूल से जानते हैं. सो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन. And let A, B are two elements which belong to this integral domain R. Then we say that B divides A. B divides A. We write it in symbols. In symbols. We write B divides A. This slash means divides. So B divides A if there exists C belonging to R such that A is equal to BC. A is equal to B multiplied with C. Let's see a few examples. In Z, the integral domain of integers, four divides 12. The reason is because there exists an integer and that is 3 in Z such that
12 is equal to 4 multiplied by 3. 4 multiplied by 3. Similarly, we can see that 5 divides 20. The reason is very simple, because there exists 4 belonging to Z such that 20 is equal to 5 multiplied by 4. And similarly, you can see that 3 divides 3, because there exists 1 belonging to Z such that 3 is equal to 3 multiplied with 1. And similarly, 3 divides minus 3. And reason is simple, because there exists minus 1 belonging to Z such that minus 3 is equal to 3 multiplied with minus 1. And similarly, we can see that minus 3 also divides 3. And the reason is because there exists 1 belonging to Z such that 3 is equal to minus 3 multiplied with 1. So this is concept of divisibility. We say that B divides A if there exists an element C in the ring or in the integral domain such that A is equal to B multiplied with C. So I repeat it. B divides A means there exists an element C in the ring R such that A is equal to B multiplied with C. So this is the concept of divisibility. By B divides A, we mean that there exists C belonging to the integral domain such that A is equal to B multiplied with C. So this is the concept of divisibility. So having said that, now we come to the concept of Euclidean domain. But before defining Euclidean domain, let's have a definition about a very familiar concept you already know, and that is highest common factor. You call it Adyasm when you are in your primary class. So highest common factor. We write it HCF. Some books write it as greatest common divisor or greatest common divisor. Or GCD. But we will call it HCF or highest common factor. In Urdu, you call it Adyasm.
you can go back to your school time books and find this particular concept for revision. So let's see what highest common factor is. The definition goes as follows. Definition: let R be an integral domain and let A, B are two elements belonging to this particular integral domain. Then an element D belonging to R, then an element D belonging to R is called highest common factor of A and B, is called highest common factor HCF or HCF of A and B if we have two conditions. First condition is D must divide A and D must divide B. So this is the first condition. And secondly, if there is some other element D dash, if D dash divides A and D dash divides B for some D dash belonging to the integral domain R, then D dash must divide D as well. So these are the two conditions. First, D is highest common factor of A and B if D divides A as well as D divides B, and secondly, if there is some other element of the integral domain which divides A and B, then that particular element D dash must also divide D. If this happens, then D becomes highest common factor. We usually write A comma B order pair. In fact, this is just a notation. We use this particular notation in order to represent the highest common factor, which is D in this case. So if D is highest common factor of A and B, then we denote this highest common factor by this particular symbol. So this is in fact just a notation. Let's see a few examples. These examples are from your school times. So consider the integral domain of integers, and let's take these two numbers or these two integers from this particular integral domain of integers 12 and 20. Then you know that the highest common factor of 12 and 20. In fact, this means that an element of Z which divides 12 and 20 both, and that is the highest one.
That's the highest one. And it is very easy to see that highest common factor of 12 and 20 is 4. 4 is the highest common factor of 12 and 20. Reason is this, because first condition, 4 divides 12 and 4 divides 20. And secondly, if some other element of Z divides 4 and some other element of Z divides 12 and 20, then that element should divide 4 as well, because since 2 divides 12 and 2 divides 20, then we note that 2 divides 4 as well. So if there is some other element of Z which divides 12 and 20, that element should divide this particular element 4. So 4 is the highest element of Z which divides 12 and 20 both. If there is some other element of Z which divides 12 and 20, then that particular element would divide 4 as well. So 4 is the highest divisor of 12 and 20, or highest common factor. So this is an example. Next, we can recall a method of finding HCF from your school times. So let's discuss that method from your school time. Let's take it as an example. Find HCF of let's say 18 and 48. तो आपको याद होगा स्कूल टाइम पर अगर आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज दी जाए तो आप यूं करते थे कि जो बड़ा नंबर है उस नंबर को आप छोटे नंबर के साथ डिवाइड करने का एक प्रोसेस शुरू करते थे जिसे एल्गोरिदम कहते हैं. सो वी डिवाइड 48 by 18. So 18 2s are 36 and remainder is 12. फिर आपको याद होगा आप ये जो इससे पहले डिवाइज़र था उस डिवाइज़र को आप इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं 18. सो 12 1s are 12 and remainder is 6. अब फिर आप इस रिमाइंडर के साथ इससे पहले जो डिवाइज़र था उसे आप डिवाइड करेंगे. सो यू विल डिवाइड नाउ 12 with 6. 6 2s are 12 and we get 0 at the end. Therefore आपको याद होगा कि आपके पास HCF जो है 18 और 48 का ये वाला नंबर आता है जिसके साथ आखिर में आपने डिवाइड किया था 6. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू नोट. फर्स्ट स्टेप में आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं. सो आप इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं और 12 आपके पास रिमाइंडर आता है. फिर जो आपका रिमाइंडर आता है वो डिवाइज़र बन जाता है और 18 को आप इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं. उसके बाद रिमाइंडर आपका 6 आता है और ये 6 जो है ना ये फिर इसके बाद डिवाइज़र बन जाता है. 12 को आप फिर 6 से डिवाइड करते हैं और ये काम उस वक्त तक आप करते रहते हैं जब तक आपके पास
रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता. So having said that, so this is the process of finding highest common factor of two elements of integral domain Z. और ये बात आपने स्कूल टाइम पर सीखी हुई है. So having repeated this process, let's come to a definition, and that is definition of in fact this is definition of Euclidean domain. So Euclidean domain. So let's define that. An integral domain R is called a Euclidean domain. An integral domain की definition हमने रिकॉल की है. This is a commutative ring with identity which does not contain zero divisors. So an integral domain R is called Euclidean domain. यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था. इसे उर्दू में अक्लीदस कहते हैं. आपने शायद सुना होगा ये लफ्ज़. उर्दू में हम इसे अक्लीदस कहते हैं. एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, यूनानी मैथमेटिशियन. सो एन इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन if to any element of R which is non-zero, we can assign a non-negative integer. A non-negative integer non-negative integer means 0, 1, 2, 3, 4. So positive integers including 0, these are non-negative integers. So we can assign a non-negative integer. इस non-negative integer को हम phi a से represent कर लेते हैं. phi a such that दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि phi a has to be less than or equal to phi of product of two elements a and b for all a b belonging to the integral domain R, and a and b have to be non-zero. And second condition is for any a b belonging to the integral domain R where b is not equal to 0, there must exist two elements Q and R in the integral domain R such that A is equal to BQ plus R, where phi of R is less than phi of B, or R is equal to 0. I think we must have less than or equal to phi of B, or R is equal to 0.
बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, आप इससे पहले आप इसे जानते भी हैं, काफ़ी प्रैक्टिस भी है आपको इस चीज़ की। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप कंसिडर करें z द इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स। कंसिडर z the integral domain of integers. Then सबसे पहली बात तो ये नोट कीजिए कि फॉर एनी a belonging to z, फाई a जो हमने फाई ऊपर जिक्र किया है, फाई a के माने हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो इसको a ही रहने दें, अगर a नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए। तो इसी व्हाट फाई a मीन्स फॉर z। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से मुतल्लिक भी आप जानते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम ए की वैल्यू ले लें। लेट ए इज इक्वल टू से 39 एंड सपोज बी इज इक्वल टू 4। अब ये नोट कीजिए कि आप जो प्रोसेस किया करते हैं वो ये है कि आप 39 को 4 से डिवाइड करने का प्रोसेस इस तरह से होता है कि 9 times 4 is equal to 36 एंड रिमाइंडर आपके पास यहाँ 3 आ जाता है। देयरफॉर वी कैन राइट 39 is equal to 4 into 9 plus 3. So 39 is equal to 4 multiplied with 9 and then plus 3. तो आप नोट कीजिए कि ये यही चीज़ है। A is 39, B is 4 and Q is 9 and R is 3. This is what you call, in fact, you call it quotient, you call it remainder, this is dividend, this is divisor. If you remember these things, this is called quotient. This is called dividend. This is called divisor. And this is called remainder. This is why we write this as Q. So 39 is equal to 4 multiplied by 9 with plus 3. 3 is the remainder. So A is equal to B Q plus R. So this is remainder R, this is Q, this is R, then this is A, and this is B. So A is equal to BQ plus R. BQ plus R. And those conditions, as far as phi is concerned, since we have chosen positive integers, so these conditions are automatically satisfied. Anyway, I have taken this example just to recall your concepts from your school level. So these are the things you already know. So if we are given two elements from the integral domain, we can find two elements Q and R in the integral domain such that A is equal to BQ plus R, where
phi r is less than or equal to phi b or r is equal to 0. So having said that, let's come to a theorem. And theorem says that let R be a Euclidean domain So let R be a Euclidean domain and A, B are two elements of R where A and B are not equal to 0. These are non-zero elements. Then A and B have an HCF, highest common factor. I think I must write N. Then A and B have highest common factor, which can be expressed as AU plus BV for UV belonging to R. देखिए अगर हमें यूक्लिडियन डोमेन R के कोई दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो उन दो एलिमेंट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जा सकता है और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस शक्ल में लिखा जा सकता है। क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन का फैसला किया था। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A and B is equal to AU plus BV. This is what we have to establish. So let's come to the proof. So for proof, our first step is going to be we have to define, in fact since R is an integral domain, therefore function or assignment phi is automatically there. So let's note this particular thing. Since R is an integral domain, so since R is a Euclidean domain, R is a Euclidean domain, therefore, because definition of Euclidean domain says that there is an assignment phi which has certain conditions. So since R is a Euclidean domain, therefore we have an assignment phi such that the condition we have already discussed, such that first condition is phi A is less than or equal to phi AB for all AB belonging to R, AB are non-zero. This is the condition which was given in the definition. And secondly, for any AB belonging to R,
B has to be non-zero, B not equal to 0. There must exist Q and R belonging to R such that A is equal to BQ plus R, where phi R is less than phi B, or R is equal to 0. So this is in fact definition of Euclidean domain. So having said that, now we choose two elements of the ring R. So let AB belong to R. Such that phi A is greater than or equal to phi B. So let's take two elements of the Euclidean domain R. Then, because of our conditions which we have repeated in our first step, there must exist Q1 and R1 in the Euclidean domain R such that we are going to use this particular condition such that A is equal to BQ1 plus R1, where note that let me correct my this inequality. It is just less than, not less than or equal to. Let me correct it in my previous definition as well. Phi R is less than phi B. So please note it. This is correction. Phi R is less than phi B. So this is in fact definition. So A is equal to BQ1 plus R1, where phi R1 is less than phi B. This is because of this condition. Phi R is less than phi B, where phi R1 is less than phi B. Now let me recall the process of finding HCF from our school time. Remember that this is a divisor, and when we divide, we obtain a remainder 12, and then 12 becomes a divisor, and 12 divides 18. We obtain a remainder 6. Then 6 becomes divisor, and we divide 12 with 6, and then so note that the remainder becomes divisor. It is very important thing to note that in the process of finding HCF, the remainder becomes divisor. In this case, you can see that R1 is remainder. So in our next step, R1 will become divisor. In this case, B is divisor. B is divisor. R1 is remainder. Now R1 will become divisor. R1. And R1 will divide B. B. R1, and then we will have some, say it Q2 quotient, and then plus
remainder, let's call this remainder R2, and in this case we will have phi of R2 is less than phi of R1. Phi of R1 is less than phi of B. Now phi of R2 is less than phi of R1. So phi of R2 is less than phi of R1. And therefore now this remainder will become divisor. This remainder R2 will become divisor, and R2 will divide R1. R1 is equal to R2, and let's write quotient as Q3, and then plus R3. And in this case we would have phi R3 is less than phi R2. And next you can easily see that now this remainder will become divisor. This remainder will become divisor R3, and this R3 will divide R2. So R2 will come here. R3, let's take quotient as R4, Q4 plus R4, and condition is phi R4 is less than phi R3, and so on. We keep on doing that, and we keep on doing that until we obtain remainder as 0. This is the process you already know from your school time. जब आप HCF निकाल रहे होते हैं तो आप उस वक्त तक ये प्रोसेस जारी रखते हैं एल्गोरिदम का, जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता. सो वी कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल वी ऑब्टेन. हम लास्ट में लिख लेते हैं Rn-2 इज इक्वल टू, आप इसे नोट कर लीजिए कि यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर 3 है, इससे एक ज़्यादा, तो ये Rn-2 है तो यहाँ पर Rn-1 होगा, इसमें एक जमा कर दीजिए. फिर यहाँ पर अगर आपके पास R3 है तो यहाँ पर Q4 है, तो यहाँ इससे एक ज़्यादा, तो यहाँ Rn-1 है तो यहाँ पर इसमें एक जमा कीजिए, यहाँ पर Qn आ जाएगा. और अगर यहाँ Q4 है तो यहाँ पर R4 है, तो यहाँ पर Qn है तो यहाँ पर Rn होगा. और कंडीशन आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, वे phi Rn यानी कि रिमाइंडर पर phi की वैल्यू इज लेस देन डिवाइजर पर phi की वैल्यू से phi Rn-1. और इसके बाद की टर्म जो है वो होगी, ये अगर R1 था तो ये R2 है, ये Rn-2 है, तो इसके बाद एक आगे चलिए तो ये आ जाएगा Rn-1, एंड दिस इज इक्वल टू, अब R2 से R3 तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो Rn-1 में एक बढ़ाएंगे तो ये Rn हो जाएगा. और ये R3 है तो Q4 है, तो ये Rn है तो ये Qn+1 होगा. अब इस प्रोसेस ने कहीं ना कहीं ख़त्म होना है जाकर, तो हम इसी स्टेज पर इस प्रोसेस को ख़त्म कर लेते हैं और हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ जो रिमाइंडर है जो कि एक्चुअली Rn+1 बनना था वो हमारे पास 0 है. सो एक तो हम इसे नोट कर लेते हैं, इसके में ज़रूरत पेश आएगी आगे जाकर, वी कॉल इट 1. और एक हम इसे नोट कर लेते हैं, वी कॉल इट 2. और एक हम इसे नोट कर लेते हैं, जो लास्ट वन है, इस वी कॉल इट 3. तो हमने दरअसल डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया है. अब यहाँ पर Rn+1 के 0 आने से मतलब हम एक रिमार्क हम लिख लेते हैं कि लेट्स कॉल इट रिमार्क. तो ये बात नोट कीजिए कि phi b जो है वो phi R1
1 से बड़ा है, phi b is greater than phi r1। यहाँ इज इक्वल टू मैं गलती से वहाँ लगा रहा था, इसलिए मैंने इसको ठीक कर दिया था, बिकॉज इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, डेफिनेशन के मुताबिक हमने डिफाइन किया था। सो phi b इज ग्रेटर देन phi r1 and phi r1 is greater than phi r1 is greater than phi r2 and phi r2 is greater than phi r3 and phi r3 is greater than phi r4 एंड देन ग्रेटर देन, इसके बाद आप इस तरह चलते रहिए। अब ये नोट कीजिए कि ये जो सीक्वेंस है इसमें phi b सबसे बड़ा है, उसके बाद phi r1 छोटा है, phi r2 छोटा है, phi r3 छोटा है, phi r4 छोटा है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे तो इसने लाजमी जाके आखिर में ज़ीरो होना है। सो वी जस्ट नोट दैट that is strictly decreasing sequence of, वो जो हमने पहले लिखा है, strictly decreasing sequence of non-negative integers जो फाई जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर असाइन करता है इंटीग्रल डोमेन के हर एलिमेंट के साथ, हर नॉन जीरो एलिमेंट के साथ इनफैक्ट। सो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स therefore it must terminate, therefore बस ये ख़त्म हो जाना चाहिए, therefore it must terminate। So it must terminate and this is possible only if a remainder becomes zero। जैसे हमने Rn+1 को ज़ीरो कर दिया है, तो therefore this is possible only if and this is possible only if a remainder is zero। और इसी वजह से हमने Rn+1 को ज़ीरो लिया है। और ये चीज़ वैसे भी आप जानते हैं, आपके स्कूल लेवल का जो एक्सपीरियंस है, और हमने भी एग्ज़ाम्पल भी की थी कि हम SCF निकालने के प्रोसेस में उस वक्त तक हम इस एल्गोरिदम को जारी रखते हैं जब तक आखिर में हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। सो दिस इज़ द रीज़न वी आर राइटिंग देयर। So having done that, having said that Rn+1 is equal to 0, we come to next step now। हम इसमें प्रूव ये करेंगे कि now we shall prove that कि जो रिमाइंडर Rn है ना, उस रिमाइंडर को हम AU+BV की शक्ल में लिख सकते हैं for UV belonging to R।
वी विल प्रूव दैट। और ये प्रूफ हम बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। सो वी शैल यूज़ method of induction for this proof। मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने इंटरमीडिएट में सीखी हुई है। और फिर यही रिमाइंडर जो है और एन, जिसको हम इस तरह से लिख लेंगे, यही रिमाइंडर जो है ये हमारा HCF बन जाएगा। मैं दोबारा आपको रिकॉल कर दूँ, जब आप स्कूल टाइम पर आप HCF निकालते थे तो ये जो आपका ज़ीरो आने से पहले वाला रिमाइंडर था ना, यही आपका HCF होता है, HCF। और यही चीज़ हम कर रहे हैं इस वक्त कि ये जो हमारा ज़ीरो आने से पहले वाला रिमाइंडर है, ज़ीरो आने से पहले वाला रिमाइंडर RN, इसी रिमाइंडर RN को हम HCF प्रूव कर देंगे, दैट द सेम रिमाइंडर। मैंने दूसरे काज पर जो लिखा था, सो RN इज इक्वल टू AU प्लस BV हम प्रूव करेंगे। और यही रिमाइंडर RN भी है ना, दिस विल बिकम आवर HCF। लेट मी शो यू, हमने इससे पहले इसको लिखा हुआ है कि अब देखिए यहाँ हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो बनता है, RN प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस वन। ज़ीरो बनने से पहले वाला जो रिमाइंडर है RN, ये RN हमारा HCF होगा। जैसे स्कूल लेवल की प्रैक्टिस में होता है कि रिमाइंडर ज़ीरो आने से पहले वाला जो रिमाइंडर है वो आपका HCF होता है। और यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो इस स्टेज पर ज़ीरो आया है, तो इससे पहले वाला रिमाइंडर जो है ना, दिस विल बी HCF। और इसी रिमाइंडर को वी हैव टू राइट एज AU प्लस BV। हम ये प्रूव करेंगे कि वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म एंड देन वी विल establish that this is in fact HCF. So we shall use method of induction for this particular proof। और इंडक्शन का मेथड आप जानते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आप बात को इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर फॉर n इज इक्वल टू सम इन बिटवीन स्टेज के लिए आप बात को सपोज करते हैं, एंड देन फॉर नेक्स्ट स्टेज के लिए आप फिर बात को दोबारा प्रूव करते हैं। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो मैं आपको पहले ये मैं दिखा दूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1 हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n is equal to 1 we will use induction on n from 1, ये हमने 1 कहा था, a is equal to BQ1 plus R1। so for n is equal to 1 from 1 we have 1, ये है a is equal to BQ1 plus R1, a is equal to BQ1 plus R1। and therefore यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू, आप BQ1 को इस तरफ ले आइए, तो R1 इज इक्वल टू A माइनस BQ1 एंड therefore R1 can be written as A multiplied with 1 plus B multiplied with minus Q1, and therefore we have written R1 as A multiplied with U plus B multiplied with V, where U is equal to 1 and
v इज इक्वल टू माइनस Q1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने R1 को AU प्लस BV की शक्ल में लिख दिया है। सेकंड स्टेप में हम सपोज कर लेंगे कि ये जो रिलेशन हमने प्रूव करना है, ये वाला नंबर 4 जिसको हमने कहा हुआ है, ये होल्ड करता है। आप कह लीजिए कि फॉर n इज इक्वल टू I माइनस 1। सो सपोज दैट four holds for n is equal to I माइनस 1। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज के लिए हम प्रूव करेंगे इट डज होल्ड। हम n इज इक्वल टू I माइनस 1 के लिए हम सपोज कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू I के लिए हमने प्रूव करना है। सो वी शैल प्रूव दैट four holds for n is equal to I। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने सपोज कर लिया है। अब इंडक्शन के प्रोसेस में ये बात नोट कीजिए कि जब आप सपोज करते हैं कि सम रिलेशन होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू I माइनस 1, तो I माइनस 1 से पीछे जितनी भी हैं n की कीमतें, उन तमाम के लिए भी वो रिलेशन होल्ड कर रहा होता है। दिस व्हाट वी आर सेइंग। इनफैक्ट इंडक्शन के प्रोसेस में जिस स्टेज पर हम सपोज करते हैं उसकी पिछली स्टेजेस के लिए वो रिलेशन होल्ड कर रहा होता है। सो अब हम n इज इक्वल टू I माइनस 1 के लिए हम कह रहे हैं कि नंबर 4 होल्ड करता है, तो फिर I इज इक्वल टू n इज इक्वल टू I माइनस 2 के लिए भी ये रिलेशन जो है ये होल्ड करेगा। तो सिंस फ्रॉम स्टेप 2 we obtain हम कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू I माइनस 1 के लिए रिलेशन होल्ड करता है कि अगर हम यहाँ पर n की बजाय I माइनस 1 लिख दें तो R I माइनस 1 will be equal to A multiplied with some element of the Euclidean domain R, let's call that element as X, and then plus B into some element of Euclidean domain, let's call it Y। हमने ये U V की जगह पर X Y लिख लिया, सिंबल्स है महज ये। तो I माइनस 1 के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। सो R I माइनस 1 शुड बी इक्वल टू दिस, एंड I माइनस 1 से पीछे I माइनस 2 है, उसके लिए भी ये होल्ड करना चाहिए। तो R I माइनस 2 इज इक्वल टू, आप यहाँ इसको आप AX डैश कह लीजिए प्लस BY डैश। सो क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि I माइनस 1 के लिए ये होल्ड करता है, तो I माइनस 2 के लिए भी ये होल्ड करेगा, तो ये हमें ये दो रिलेशंस मिल जाएंगे। So having said that, let's first note that for x y and x dash y dash जो है ये इसी यूक्लिडियन डोमेन R को बिलोंग करते हैं। वो जो हमने R I माइनस 1 और R I माइनस 2 लिखे हैं उनके लिए। नाउ अब ये नोट कीजिए, ये हमारे पास जो 2 है, Rn माइनस 2 इज इक्वल टू Rn माइनस 1 Qn प्लस Rn। इसमें अगर हम n की जगह पर I लिख दें तो ये आ जाएगा R I माइनस 2
इसमें अगर हम n की जगह पर i लिख दें तो ये आ जाएगा आर आई माइनस टू इज इक्वल टू आर आई माइनस वन क्यू आई प्लस आर आई। ये रिलेशन टू है जो हम पीछे लिखा हुआ है ये। सो देयरफॉर फ्रॉम टू, इसमें हम n की जगह पर i लिख देते हैं। सो नाउ फ्रॉम टू we obtain r I minus 2 is equal to r I minus 1 q I प्लस r I। ये हमने इसमें n की जगह पर i लिखा है नंबर 2 में। सो बाकी हमारा ये रिलेशन रह जाता है, इसमें भी हम लिख देते हैं ये phi r n, दिस विल बिकम phi r I is less than phi r I minus 1। इसमें हमने n की जगह पर सिर्फ i लिखा है। एंड देयरफॉर अब आर आई माइनस टू की जगह पर आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए जो कि हमने इससे पहले निकाली है। सो आर आई माइनस टू इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर आई माइनस टू, आर आई माइनस टू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर आई माइनस वन। ये वैल्यूज हम यहाँ आर आई माइनस टू और आर आई माइनस वन की जगह लिख देंगे। ये वैल्यूज आर आई माइनस टू इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश और आर आई माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं। तो देयरफॉर इसकी जगह हम लिख देंगे ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इज इक्वल टू आर आई माइनस वन की जगह हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाइड विद क्यू आई एंड देन प्लस आर आई। तो ये हमने ये वैल्यूज वहाँ पर से लिखी। सो हैविंग रिटन दीज वैल्यूज वी ऑब्टेन देयरफॉर। अब मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं करता, हम डायरेक्ट बड़ी आसानी से आप इस बात को देख लेंगे। हम आर आई की वैल्यू निकालने लगे हैं। तो ये आर आई समझिए हमने यहीं छोड़ा हुआ है, इनको हम इस तरफ ले आते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर आर आई इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आए हम, आर आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए एक्स डैश ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ, देखिए इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट। सो आर आई इज इक्वल टू ए, ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई एंड देन प्लस वाई डैश माइनस वाई क्यू आई, और यहाँ से मुझे बी कॉमन ले लेना चाहिए, बी कॉमन। तो आप देख लीजिए कि ए एक्स क्यू आई माइनस होकर यहाँ आ जाएगा, दोनों में से आप ए कॉमन लें तो एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई, और फिर बी वाई क्यू आई माइनस होकर इधर आ जाएगा, तो बी आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा वाई डैश माइनस वाई क्यू आई। सो आर डैश इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, आर आई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई प्लस बी इंटू वाई डैश माइनस वाई क्यू आई। सो हैविंग डन दैट we can say that therefore आर आई इज इक्वल टू, अब आप इसे u क्या लीजिए, इसे v क्या लीजिए, तो therefore आर आई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद u प्लस b मल्टीप्लाइड विद v, वेयर u हमने इसको कहा है, u इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स क्यू आई, और
वी हमने इसे कहा है वाई डैश माइनस वाई क्यू आई को, तो इसे हमने यू कह दिया, इसे वी कह दिया। सो आर आई बिकम्स ए यू प्लस बी वी एंड, तो आप देख सकते हैं कि ये यू वी जो हैं ये आर ही को बिलोंग करते हैं। एंड हैविंग डन दैट, इसके साथ ही हमारा इंडक्शन जो है ना उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो देयरफॉर इंडक्शन इज कंप्लीटेड। Therefore, induction is completed and hence, अब देखिए हमने प्रूव किया था कि अगर n की कीमत 1 है तो भी हम R1 को इस शक्ल में लिख सकते हैं, अगर n की कीमत हम i-1 ले लें तो भी इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब हमने प्रूव कर दिया अगर हम n की कीमत i ले लें तो भी इस शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके माने हमने इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट Rn कैन बी रिटन एज AU plus BV where UV belong to R। इसके साथ ये चीज़ अभी मुकम्मल इसलिए नहीं होती कि हमने सिर्फ एक काम किया है कि हमने वो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ज़ीरो होने से पहले वाला जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हमने AU प्लस BV की शक्ल में लिख दिया है, लेकिन अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि यही रिमाइंडर जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। So we shall prove that this particular remainder Rn satisfies the two conditions for being highest common factor। और दो conditions आप जानते हैं कि highest common factor को चाहिए कि a और b दोनों को डिवाइड करे, अगर कोई और भी a और b दोनों को डिवाइड करता है तो वो फिर इस highest common factor को भी डिवाइड करे। So we have to establish these conditions। So now we shall prove that Rn is HCF। Now we shall prove that this particular Rn is highest common factor, यानी ये वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो इसके लिए हमें दो कंडीशन प्रूव करनी है। सबसे पहली कंडीशन पर हम आ जाते हैं कि फ्रॉम 3 वी नोट दैट मैं आपको दिखा दूँ 3 हमारे पास क्या था। अभी दिस इज 3, Rn minus 1 is equal to Rn multiplied by Qn plus 1। तो ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब Rn जो है वो Rn माइनस 1 को डिवाइड करे। देखिए अगर Rn माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर में आ जाए और ये जवाब आए तो ये इसके माने ये है कि Rn माइनस 1 जो है वो Rn जो है वो Rn माइनस 1 को डिवाइड करता है। Rn minus 1 is equal to Rn multiplied with Qn plus 1 means that Rn divides Rn minus 1। So from 3 we know that Rn divides Rn minus 1। So this is very simple to observe that particular thing। So Rn divides Rn minus 1। Now हम कह रहे हैं कि Rn divides Rn minus 1, और ये हमें वैसे ही पता है कि हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता ही करता है।
आर एन डिवाइड्स आर एन। इससे फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कह रहे हैं कि आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन। फिर हम कह रहे हैं आर एन डिवाइड्स आर एन, तो आर एन जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो फिर आर एन इस राइट हैंड साइड की पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करता होगा। तो देयरफॉर आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस टू। सो दिस implies that आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस टू। तो हमने ये कहा कि आर एन इसको डिवाइड करता है, फिर इससे हमने ये डिड्यूस किया कि आर एन इसको डिवाइड करता है। पर ये प्रोसेस अगर हम पीछे तो लेते चले जाएं तो आखिर में जाकर आ जाएगा आर एन जो है वो बी को डिवाइड करता है और आर एन जो है वो ए को भी डिवाइड करता है। इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में लेते चले जाएं तो सो moving backwards we finally obtain moving backwards we finally obtain that Rn divides B, Rn जो है ये B को डिवाइड करता है और Rn जो है ये A को भी डिवाइड करता है एंड Rn डिवाइड्स A। तो ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली कि ये Rn जो है वो A और B दोनों को डिवाइड करता है। सो दिस व्हाट वी हैड टू डू। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन में फिर हमने ये करना है कि अगर कोई और एलिमेंट भी ए और बी को डिवाइड करता हो तो फिर आर एन उस एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। तो उसके लिए आप सपोज कर लीजिए कि लेट डी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि डी जो है वो ए को भी बिलोंग करता है, डिवाइड करता है, डी डिवाइड्स ए, और डी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, डी डिवाइड्स बी। देन मैं आपको इसमें ठीक ये रिलेशन दिखा दूं कि ये देखिए ये 4 है हमारे पास। हम कह रहे हैं डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, और 4 में देखिए आर एन इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो अब अगर डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है, तो फिर डी जो है वो राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है। देयरफॉर डी डिवाइड्स आर एन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो सो इफ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी देन फ्रॉम 4 डी डिवाइड्स आर एन। So then from 4 we obtain that D divides Rn। तो अब देखिए हम ये बात पे प्रूव कर दी है कि अगर D जो है वो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। पहले तो हमने ये बात इस्टेब्लिश की थी कि आर एन जो है वो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, और अब हमने ये इस्टेब्लिश किया है कि अगर कोई और एलिमेंट ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है तो वो एलिमेंट फिर आर एन को भी डिवाइड करता है। और यही कंडीशन है जो किसी एलिमेंट को एच सी एफ बनाती हैं। तो देयरफॉर आर एन इज एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। देयरफॉर Rn is HCF of A and B, and therefore Rn is HCF of A and B। उसे हम इस तरह से लिखते हैं A and B, and therefore
ये बात हम इससे पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आर एन जो है वो ए यू प्लस बी वी के बराबर है। तो देयरफॉर आर एन इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश की थी नंबर 4 में। आर एन इज इक्वल ए यू प्लस बी वी। अब हम आर एन को ए और बी का एच सी एफ कह रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम फोर वी obtain that आर एन, 4 में आप आर एन की जगह ए बी लिख दीजिए। सो दिस विल बिकम ए बी इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। सो एज रिक्वायर्ड, यही हमने प्रूव करना था कि कोई दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं नॉन ज़ीरो, तो उनका एच सी एफ जो है वो एग्जिस्ट करता है और एच सी एफ को इस शक्ल में लिखा जा सकता है फॉर यू वी बिलोंगिंग टू आर। तो इसके साथ ही भी कंप्लीट आवर थ्योरम।